کی ماں، علی کی بیوی، علی کی بیوی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی آقا کی خدمت میں آئی، حضور دعا فرما دیجیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو دیکھا، فرمایا بیٹی کس کے لیے دعا کرا رہی ہو؟ میری ماں اور بہنوں، دعا نہ بلڈنگ کے لیے دعا تھی، نہ مکان کے لیے دعا تھی، نہ کھانے کے لیے دعا تھی، دعا کس بات کی تھی؟ عرض کیا کہ حضور دعا یہ کر دیجیے کہ ذرا رات لمبی ہو جائے، ذرا رات بڑی ہو جائے۔ عجیب و غریب دعا ہے، ذرا دعا کو دیکھیے، دعا کے تقاضے کو دیکھیے، ڈیمانڈ کو دیکھیے، دعا کی ذرا لمبی ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ بیٹی رات تو بڑی ہوتی ہے، آخر رات لمبی ہونے کی دعا کیوں کراتی ہو تم؟ عرض کیا کہ حضور بات یہ ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ عشاء کی نماز کے بعد جب 2 رکعت کی نیت باندھتی ہے تو ابھی 2 رکعت پوری نہیں ہوتی کہ صبح کی اذان ہو جاتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، نبی کی بیٹی 2 رکعت میں رات گزار دے تو کیا فاطمہ سے محبت کرنے والیاں کیا وہ 10 اور 15 منٹ بھی نماز کے لیے نہ دے سکے؟ یاد رکھو، اگر تمہیں کاپی کرنی ہے تو حضرت فاطمہ کی کاپی کرو، اگر تمہیں کچھ لینا ہے تو حضرت فاطمہ سے لو۔ اللہ اکبر، تمہیں دنیا بھی ملے گی، دین بھی ملے گا، دین اور دنیا کی تمہیں تمام راحتیں ملیں گی۔ ہاں، بتانا یہ ہے کہ میرے دوستو ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور نہ ماننے کا تو یہاں سوال ہی نہیں، ہم تو سب کو مانتے ہیں۔ کیسے مانتے ہیں؟ اللہ کو اللہ مانتے ہیں، خدا کی بات میں کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس کو ملا، جو ملا، جب بھی ملا، جیسے ملا، یہ سب اللہ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ اللہ کو اللہ، رسول کو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کو صحابہ، اہل بیت اطہار کو اہل بیت، اور ولی کو ولی۔ اپنے اپنے مقام میں ہم سب کو مانتے ہیں میرے دوستو، گھٹانا اور بڑھانا یہ ہمارا کام نہیں۔ اور بات بھی یہ ہے میرے دوستو کہ اللہ جس کو بڑھائے تو گھٹا اس کو کون سکتا ہے۔ ایک بات اور عرض کرتا چلوں، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سنی لوگ جو ہے بہت زیادہ سرکار دو عالم کی تعریف کرتے ہیں اور بہت زیادہ سرکار دو عالم کی تعریف کر کے ان کو بڑھا دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ میرے عزیز دوستو، بات ذرا طریقے سے کی جائے تو وہ طریقے کی بات ہوتی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں نبی کو بڑھانے والے؟ معاذ اللہ، ہماری کیا بات میرے دوستو، بڑھانے والے نے تو ان کو اتنا بڑھایا کہ معراج کی رات پوری کائنات ان کے قدموں کے نیچے آ گئی۔ کیا پوچھتے ہو ان کے بڑھانے کی شان کو؟ ان جیسا نہ کوئی ہوا نہ آئندہ ہو، وہ تو اپنی شان کے اعتبار سے میرے دوستو بے نظیر ہے، بے مثال ہے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ ہم نبی کا نام لے کر، نبی کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے، نبی کے نام کے صدقے خود ہم اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں۔ اپنی عزت اور عظمت کی بھی ہمیں نبی کے نام لینے سے مل جاتی ہے۔ ہاں، معلوم یہ ہوا کہ 1400 برس کے اندر یہ جو سیریز ہے اور سلسلہ ہے، قرآن کے ماننے کے ساتھ ساتھ ان کو ماننا بھی ضروری ہے، چونکہ ان کے وسیلے سے تو ہمیں قرآن ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آج کے فنکشن میں ہم ان تمام مقدس بندوں کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ خداوند عالم جن لوگوں نے قرآن پر عمل کیا، قرآن کی اشاعت کی، اے خداوند عالم سب پر اپنی رحمت کا نزول فرما دے۔ آئیے حضور، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ رات آپ نے باتیں سنی اور آج اس کا کچھ تتمہ، اسی سلسلے میں جو سبجیکٹ اور موضوع کل قائم ہوا تھا اسی کے اوپر کچھ اور باتیں عرض کرتا چلوں۔ آپ نے یہ بات سنی، قرآن نے کہا کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ چیلنج کیا گیا، آپ سن چکے کہ تمام عرب کے لوگ دشمن گردنیں ان کی جھک گئی۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، ایک آدمی، ایک انسان کامل انہی میں پیدا ہوا، انہی میں پڑھا، 40 سال کی عمر ہوئی، زبان ان کی بھی عربی، ان کی بھی عربی، یہ بھی عربی بولتے ہیں، وہ بھی عربی بولتے ہیں، اور 40
उम्र में वो मेरे दोस्तों चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि लाओ तुम जो मैं बोल रहा हूं मेरी जैसी अरबी तुम बोलकर दिखा दो, जो मैं खुदा का कलाम पेश कर रहा हूं जैसा कलाम तुम बोलो। अजीब बात है मेरे दोस्तों, आज अंग्रेजी, शेक्सपियर की अंग्रेजी हम देखते हैं, कहते हैं सुभान अल्लाह बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलने वाला है, बहुत अच्छा अंग्रेजी लिखने वाला है, बेहतरीन शायर है, बेहतरीन ड्रामा नवीस है, अल्लाह अकबर। जॉर्ज बर्नार्ड को देखते हैं सुभान अल्लाह बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलता है, एक पर एक अंग्रेजी, एक सेंटेंस के मुकाबले में दूसरा और दूसरे के मुकाबले में तीसरा। मेरे दोस्तों बेहतर से बेहतर राइटर दुनिया के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये अजीब बात है कि अरबी सरकार दो आलम भी अरबी, सरकार दो आलम भी मक्की, मक्के के जितने काफिर हैं वो भी अरबी, वो भी मक्की, उनकी जबान भी अरबी, वो भी अरबी बोलते हैं। और हुजूर फरमाते हैं कि मैं खुदा का कलाम पेश कर रहा हूँ, आओ तुम्हारे पास अगर ऐसा कलाम है तो पेश करो। मालूम होता है मेरे दोस्तों कि सरकार दो आलम ने वो जबान पेश की और अरबों के सामने पेश की जिसका जवाब नहीं हो सका। कुरान के मुकम्मल कुरान होने पर और खुदा का कलाम होने पर सबसे आला और बेहतरीन सबूत है। अच्छा जनाबे वाला उस जमाने में किसी से नहीं हो सका, लेकिन आज तो लिटरेचर जो है बहुत तरक्की कर चुका है। आज डिक्शनरी लिखी गई, दुनिया की तमाम कौमों ने अरबी में बड़ी तरक्की की है, तो आज क्यों नहीं कुरान के मुकाबले में कोई ऐसा जुमला या कोई ऐसी किताब पेश कर दी जाए। लेकिन मेरे दोस्तों पेश कहां से करें। हकीकत यह है कि जो अरबी का जितना ज्यादा जानने वाला होगा, कुरान के जुमले उसको उसी कदर ज्यादा मस्त कर देंगे। जिस कदर ज्यादा कुरान का समझने वाला होगा, उसी कदर ज्यादा कुरान की हुक्मरानी और कुरान की बलागत और फसाहत की हुकूमत उसके दिलो दिमाग पर होगी। मुख्तसर ये कि कुरान का जवाब न पास्ट में हुआ, न प्रेजेंट में मुमकिन है और न फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि वो खुदा का कलाम है। और खुदा के कलाम में, खुदा की चीज में और मखलूक की चीज में यही फर्क है कि जो चीज मखलूक पेश करती है उसकी हजारों मिसालें हो सकती हैं, लेकिन जो खुदा की बनाई हुई है उसकी कोई मिसाल नहीं है। हवाई जहाज बन गए, बिल्कुल ठीक है, जेट तैयारे निकल गए, बिल्कुल ठीक है, 500 आदमियों को लेकर उड़ने वाले तैयारे आज दुनिया के अंदर आ रहे हैं, एयर सर्विस आज कायम हो रही है, चांद और सूरज पर चढ़ने की बातें हो रही है। लेकिन मेरे दोस्तों इनसे पूछो कि हुजूर वाला आपने जेट तो बना लिया, चांद और सूरज पर चढ़ने की आप तैयारी तो कर रहे हैं, आपको मुबारक हो, लेकिन ये तो बताइए कि एक मक्खी जरा बनाकर दिखा दीजिए, एक चिमकी जरा बनाकर दिखा दीजिए। सुभान अल्लाह, मक्खी बन नहीं सकती, चिमकी बन नहीं सकती, क्योंकि चिमकी खुदा की बनाई हुई है, मक्खी खुदा की बनाई हुई है। जो खुदा की मखलूक होती है उसको कोई बना नहीं सकता, और जो दुनिया बनाती है उसके मुकाबले में हजारों चीजें बन जाती है। ये कलाम खुदा का कलाम है, कुरान खुदा का कुरान है, इसलिए मेरे दोस्तों इसकी मिसाल दुनिया पेश कर ही नहीं सकती। हाँ, आइए दूसरी आयत जो मैंने तिलावत की, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सुभान अल्लाह, कुरान के नाज़िल फरमाने वाले ने कुरान को नाज़िल भी किया और वो तसल्ली भी दे रहा है कि ए मेरे महबूब घबराओ नहीं, ए महबूब के मानने वालों तसल्ली करो, कुरान हमने नाज़िल किया, लेकिन हिफाजत भी हम ही इसी करेंगे। हमारी हिफाजत, हम इसकी हिफाजत करेंगे कैसे, यानी इसकी हिफाजत का हम सामान कर देंगे, इसकी हिफाजत के हम असबाब बना देंगे। ये हिफाजत यानी औलियाए कामिलीन, सहाबा, तबे ताबईन, बुजुर्गाने दीन, मैं अपने इन मुकद्दस बंदों के जरिए कुरान की हिफाजत कराऊंगा, हुफ्फाज के जरिए कुरान की हिफाजत कराऊंगा कि कयामत तक मेरे दोस्तों ये कुरान बाकी रहेगा। खुदा न करे, लेकिन अगर कोई शख्स कुरान के जितने नमूने इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद हैं, खुदा न करे, लेकिन कुरान के जितने नमूने हैं, कुरान जितने प्रिंटेड कुरान हैं, इन तमाम कुरान को खुदा न खास्ता अगर खत्म भी कर दिया जाए, और अगर कोई दावा करे कि हे मुसलमानों अब मैंने तुम्हारे कुरान को खत्म कर दिया, अब पेज पर लिखा हुआ कोई कुरान दुनिया के अंदर बाकी नहीं रहा, तो मेरे दोस्तों मिल्लत इस्लामिया के 9 साल का बच्चा खड़े होकर कहेगा कि सुनो, कुरान को पेज से और वर्क से मिटाना आसान है, लेकिन सीने से मिटाना आसान नहीं, क्योंकि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। है कोई ऐसी किताब, है कोई ऐसा कलाम? हाँ 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 मेरे दोस्तों, आज अगर गालिब के दीवान को खत्म कर दिया जाए, दीवान गालिब के कुछ अशार याद रहे
के दीवान को खत्म किया जाता है, किया जा सकता है, शेक्सपियर के ड्रामे को खत्म किया जा सकता है, हैमिल्टन की बातों को खत्म किया जा सकता है, उसकी किताब खत्म, तस्नीफ खत्म, वो आदमी खत्म, लेकिन कुरान को खत्म नहीं किया जा सकता। कुरान को जला देने से माअज़ल्लाह या कुरान को पानी में डुबो देने से कुरान खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह, देख रहे हैं आप कुरान के एजाज को देखो। ए मेरी माओ, ए मेरी बहनों, मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ, आज बड़ा अच्छा मौका है, मुझे तुमसे खिताब करने का मौका मिल गया, क्योंकि तुम मेरी माँ हो, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी बच्चियां हो। इस्लाम की बड़ी जिम्मेदारी तुम पर आयद होती है। इस्लाम के फर्जंद तुम्हारी गोद में पलते हैं, खेलते हैं। इस्लाम तुमसे जिंदा है, पनपता है, फूलेगा फलेगा, तुम इस्लाम की सदाबहार हो। इसलिए मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। ए मेरी माँ और बहनों, अल्लाह ने तुम्हें बच्चे दिए खैर से, अल्लाह ने तुम्हें बच्चे दिए, किसी के पास 5 बच्चे, किसी के पास 2 बच्चे, किसी के पास 3 बच्चे। अपनी बहनों से मैं पूछता हूँ, मोहतरमा जरा इरशाद फरमाइए कितने बच्चे हैं आपके? अगर आप जवाब देंगी कि मौलाना साहब मेरे पास 5 बच्चे हैं, सुभान अल्लाह, बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह ताला इनको परवान चढ़ाए और सलामत रखे। अच्छा बताइए बच्चियां कितनी हैं? आप कहेंगी मौलाना साहब मेरे पास बच्चियां जो है वो 3 हैं और लड़के जो है वो 2 हैं। सुभान अल्लाह, बड़ी खुशी की बात है, 2 लड़के और 3 बच्चियां। मोहतरमा ए मेरी बहन, मैं देखता हूँ आपकी बच्चियां जो है नौजवान हैं, 16-17 साल की उम्र है, बड़ी लड़की 17 साल की है, माशाअल्लाह, नॉलेज बहुत अच्छा है, अंग्रेजी बेहतरीन बोलती है, माशाअल्लाह, क्लास के अंदर फर्स्ट आती है, डिवीजन उसकी बड़ी अच्छी है। लेकिन मेरी माँ और बहनों, मैं जब देखता हूँ कि 17 साल की लड़की है लेकिन नमाज उसको पढ़ना नहीं आता। आहा, ए मेरी माओ, ए मेरी बहनों, तुम्हारा नाम फातिमा है, इत्तेफाक से तुम्हारा नाम आमिना है, तुम्हारा नाम हलीमा है, नाम है हलीमा, नाम है फातिमा और नाम है आमिना। तुम्हारी बच्ची 17 साल की कुरान पढ़ नहीं सकती, स्कूल में फर्स्ट आती है, कुरान पढ़ नहीं सकती, स्कूल के अंदर मार्क्स बड़े अच्छे आते हैं, कुरान पढ़ नहीं सकती, नमाज पढ़ती रही लेकिन वो फर्स्ट डिवीजन से आती है। मेरी माँ और बहनों बताओ, कुरान तुम नहीं पढ़ाओगी तो क्या स्कूल का प्रिंसिपल आकर कुरान पढ़ाएगा, कॉलेज का प्रिंसिपल आकर कुरान पढ़ाएगा? क्या कि मिस्टर मॉर्टन आकर कुरान पढ़ाएंगे, मिस्टर लूथर आकर कुरान पढ़ाएंगे, मिस्टर फ्रेंच आकर कुरान पढ़ाएंगे? वो कौन कुरान पढ़ाएगा? ए मेरी माँ और बहनों, कॉलेज को छोड़ो, यूनिवर्सिटी को छोड़ो, मुझे कहने दो कि तुम्हारा कॉलेज जो है वो इस्लाम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, तुम्हारा कॉलेज जो है वो इस्लाम का सबसे बड़ा कॉलेज है। मेरी माँ और बहनों, मुझे माफ करो, जबान पर बात आ जाती है और मुझे कहना पड़ता है, मैं आंख बंद नहीं कर सकता, मैं जो कुछ देखता हूं मुझे कहना चाहिए। मैं तुम्हारे दीन का एक सिपाही हूँ, मैं कांस्टेबल हूँ, मैं एक सर्वेंट हूँ, और सर्वेंट का काम ये होता है कि वो आका के पैगाम को लोगों तक पहुंचाए। हुजूर वाला, मेरी माँ और बहनों, तुम्हें सोचना है तुम्हारी बच्चियां नमाज भी पढ़ती हैं या नहीं, कुरान भी पढ़ती हैं या नहीं। अगर आपकी बच्ची नमाज पढ़ती है, सुभान अल्लाह, आपको मुबारक हो। और एक बात मैं और अर्ज करूं, अल्लाह अकबर, मेरी माँ और बहनों, तुम्हारी बच्ची नमाज नहीं, मैं अभी कह रहा था कि आपकी बच्चियां नमाज नहीं पढ़ती। देखिए, आप खफा ना हो, शायद आप कहेंगे कि मैं आपको कह रहा हूँ, हो सकता है आपकी बच्चियां नमाज पढ़ती हो, और मुबारक करे अल्लाह ताला, नमाज आपकी बच्चियां पढ़ती हो, लेकिन अगर ना पढ़ती हो तो फिर मैं अर्ज कर रहा हूँ। एक मेरी बहन, मैंने उससे अर्ज किया, मेरी मुकद्दस बहन, इस्लामी बहन, आपकी बच्ची नमाज नहीं पढ़ती, अच्छा ये बताइए कि आप नमाज पढ़ती हैं?